Good morning, everyone. Good morning, sir. Morning, sir. Okay. So, in the previous class, we were talking about uh, uh, after examining certain question papers, I came to know that certain topics which are left behind are very important for you to cover up. Right. So, I have covered. I'm going to cover those topics first of all. Then we will do the question papers in detail. Right. So. So the very first thing which I believe is after the analysis of the cash flow statement and all, uh, you need to find out this PV method. Time value of money. One is the financial management. Financial management means how you manage your funds, right? So it's about three decisions. Uh, uh, is my screen visible? Yes, sir. Okay. So the thing is, we're talking about the financial management, which says that there are basically the three decisions which you take under the financial management, that are basically the financial financing decision, the dividend decision, and the investment decisions. Every firm takes the majorly the three decisions. So the whole financial management, depending upon the the three major decisions. That means the objective of the financial management is to take up the three major decisions. One is the financing, one is the dividend, and one is the investment. Right? Financing means from where you will get the funds, what will be your sources of funds. So in the case of dividend, you decide how you will distribute the your earnings. जितने भी आपने प्रॉफिट कमाया उसको डिस्ट्रीब्यूट कितना करेंगे. So you decide among how much you will retain and how much you will uh, declare as a dividend. Say you have earned 1000 rupees, so it's your choice. आप 500 rupees as a dividend declare कर दें और 500 आप retain कर लें. So so there are certain theories behind it which says that this much you can maintain or this much. So the theory says that if you will distribute the whole profit, it won't affect your firm value. So there are certain theorists who says that if you will retain the whole amount, it will enhance the value of the firm. So always, man, yesterday also we were referring this part that we will try to improve the value of the firm. So it's very important how much you will retain in your firm. So in that case, there are certain dividend decision theories. You can go through it. What are those theories? Around two to three theories majorly you will find. From that, one of the most important is the hypothesis. Modi and Miglani. You will find the Modi and Miglani hypothesis, which says that if you will distribute the whole money, then you need to reissue the shares. So if you will reissue the shares, so you have to check the cost of reissue of the shares. If it is low, then you can go for it. But wo still he is saying that it's better. You will compare it with the cost of retained earning. Cost of retain, जब आप पैसे रख भी लेते हैं मान लीजिए, तो उसकी कॉस्ट क्या है? देयर इज a cost of every capital. Whichever you invest in the company, in the firm, that have a cost, right? So I'm going to discuss it in detail how it is, how the cost will be there. So
There is a cost of retained earning also, there is a cost of equity also, right? अगर आपने इक्विटी में पैसा दे, इक्विटी होल्डर्स को पैसे दे दिए, तो दैट इज द कॉस्ट. So if you are paying it for the return earnings, then there is a cost. So you compare it between these two. And if you will retain and you will reissue the shares, new issue आप निकालेंगे मार्केट में, there is a cost. He says that almost equalize हो जाता है. So it's depending upon the firm's own decision कि वो कैसे decision लेता है. It's very important. So there are certain two three basic theories which are very important, which says that either you agree with the statement, either you won't agree with the statement that you have to distribute your profits as a dividend. So it's very important. Then uh, so these are the majorly financing decisions that are taken by the financial management. So okay. One is the time value of money. I don't know why this PDF, I'm unable to open this whole PDF. Uh, One is the time value of money, which is very important topic in your uh, which is very important topic in your syllabi. That is about the financing decisions once you are having this. Trying to search for it, but yeah, TVM डाल के देख लो TVM. हाँ, इसमें होगा. Just give me 1 minute. I'm searching where the concepts are so that you can understand that concept. This is yes. One is to what we were referring. One is the financing decision. One is the dividend decision. One is the one of the decisions that is the investment decision that is taken by the financial management people, right? So in the case of financing, we try to find out what are my sources of funds, what will be cost of it, and in the in that they try to find out, say each funds come with a cost, right? ऐसे फ्री में तो मिलेंगे नहीं मार्केट में. So जो भी आप पैसे मार्केट से लेंगे, whatever you will borrow from the market, either in the form of equity, either in the form of preference,
either in the form of debentures, either in the form of loan, in any form. If you are getting money, you have to pay a cost against it. That is known as the cost of capital, right? But for to take that decision, किसमें सबसे कम पड़ेगी या इसका कॉम्पोजिशन क्या बनाएं, क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाएं, इसके ऊपर, दैट वी गेट अ लोएस्ट कॉस्ट, राइट? सो you try to calculate those cost, whatever the sources you choose. On that very basis you decide what will be the cost of your funds, right? So on that, that is known as the cost of capital, right? So whatever the capital you are raising, what will be the cost of it, that you try to determine. That is known as the financing decisions. So how you will finance your funds, right? So it's very important. First of all, what we will do is we will calculate uh, the cost of each fund, right? Cost of each category fund, right? Then we will find out ki which one is the lowest one, है ना? Lowest किसमें लग रहे हैं, that then we will consider that, right, for the financing. Then the dividend decision, then the investment decisions are there. Last one is the investment decisions that are taken. Investment means that whenever you are going to buy any kind of, say, machinery or a new project, so where you will invest your funds. So there are certain theories, there are certain analysis that you can do, uh, for which you need to identify how much money you are going to invest and how much return you are going to get. So you try to balance, or you try to set off between the cash outflow and the cash inflow. Cash outflow means पैसे कितने लगाएंगे आप, कैश इनफ्लो मीन्स कैश आपका आएगा कितना पैसा, राइट? सो यू ट्राई टू इक्वेट दीज टू, राइट? जब आप इन दोनों को इक्वेट करने की कोशिश करेंगे, तो यू विल चेक, और नेचुरली आपको पॉजिटिव होना जरूरी है, आपकी कॉस्ट जो है वो आपके रिटर्न से ज्यादा होनी चाहिए नेचुरली. सो व्हेन इट विल बी पॉजिटिव, देन वी विल गो फॉर इट. If it is negative, we won't go for it. But there are certain conditions in which you decide that how you will uh, how you are covering that money, right? So how you will calculate those cash flows, that's very important part, which someone was in the very beginning was asking how you will calculate the cash flows. So that's the very important part. So although you won't get any practical question on it, but I want a good theoretical understanding of it. So what you will do is, so there are, that is known as, generally known as the capital budgeting decision, right? Capital budgeting decision. Majorly the capital budgeting decision covers up your uh, what are your capital budgeting process, or what are the investment evaluation criteria. That is very important. So which criteria you will apply, that is also very important. That is also known as the investment appraisal. Capital budgeting is also known as a investment appraisal, whereby you check that before investing in the project, you will try to find out कि आपके पैसे कितने लगेंगे, उसके ऊपर expected कितने आएंगे. Then you will set off that, then you will see whether you are in a positive position or not. So if we take an example of Dhirubhai Ambani, so when he started a project, it was a project was of a 20 years. After that, he was in the position to get the oil from oil wells. So today only, but you have to take the decision how much you are going to invest and how much return after 20 years you will get, or immediately you won't get the return immediately. It's very important, right? But when you will get the money after 20 years, will say you will receive 1 crore after 20 years. If even if today I talk about it, so today the value of 1 crore will be too high, but if you will receive it after 20 years, what will be the value of it? Anybody?
its value decrease, we expect money return according to the inflation. Okay, that's nice. Anybody else? So Same, means that yes, yes. same, sir. The value will be reduced according to inflation. Okay, okay. According to inflation, the value will decrease. Right. Very nice. One part. This is the half part of it. But this is a very important part. Yes, due to the inflation, yes, the value of money will be depleted. Right. वैल्यू जो है उसकी वो कम होती चली जाएगी. वन ऑफ द दिस एस्पेक्ट इज देयर. इंटरनेशनली द डिप्लीशन ऑफ वैल्यू इज आल्सो देयर. राइट. बट बहुत बहुत सारी करेंसीज हैं जिनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द नेशंस. राइट. से डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है या फिर व्हाट वी कॉल इट व्हाट वी कॉल इट इंडियन रुपी की वैल्यू डिप्लीट हो रही है. बट इन द सर्टन केसेस इंडिया की वैल्यू विद अदर कंट्रीज, कुछ छोटी कंट्रीज के साथ, से वियतनाम हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, थाईलैंड, नहीं थाईलैंड से नहीं, फ्यू ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज जिन से उज्बेकिस्तान हो गया. सो देयर आर सर्टन कंट्रीज जहां पर हमारी वैल्यू जो है, इंडियन रुपी की वैल्यू जो है वो एप्रिशिएट हो रही है इन कंपैरिजन, ओनली इन कंपैरिजन. So one is this part. Another part is that the value of money to which you are going to receive after a day will decrease. So the basic code for it is that the time value of money reduces. With the passage of time, the value of money decreases. Right. It means that the money received today is higher than tomorrow. Right. Or we can say the value of money you get tomorrow will be less than today. Right. अगर आपको कोई 1 लाख आज आपसे ले ले और आपको कहे कि 10 साल के बाद भी ये कहे कि आप मेरे से 1 लाख ले लीजिएगा, सो व्हाट यू विल फील? विल से कि नहीं 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 यार, तब तो 1 लाख की एक तो वैल्यू नहीं रहेगी, प्लस उसके ऊपर एक मेरे पास एक इंटरेस्ट अमाउंट आना चाहिए था. वन इज की इन्फ्लेशन रेट हो गया आपका कवर, दैट की आज का वैल्यू जो है, 1 लाख की वैल्यू जो अगर आप 10 साल के बाद देंगे, नेचुरली आप कहेंगे 1 लाख ही दे, तो 1 लाख ही रहा है ना, आपको एक्चुअल अमाउंट तो उतना ही दे रहा है. बट इट्स अफेक्टेड बाय द इन्फ्लेशन. यस, द वैल्यू ऑफ मनी. सेकेंड थिंग, यू मस्ट हैव अर्न Actually, समथिंग ऑन इट. प्लीज switch off your mic. Um, so the value there, you will find out what should be its value, है ना. तब तक आप उसके ऊपर कुछ कमा चुके होते. So there is a opportunity cost is also there, right? So that will also be included in it, right? अगर आपने 1 लाख वही कहीं इन्वेस्ट कर दिए होते तो आपके वो तो 5 लाख बन चुके होंगे तब तक शायद, है ना. ऑलमोस्ट डबल तो हो ही चुके होंगे. मिनिमम 8 years में आजकल डबल हो रहे हैं. So it's very important that you find out what will be the value of money. Right. So you discount it first of all, then you see that what is the actual amount you are getting. So when you discount it by certain interest rate or your inflation rate and all, everything you deduct it, then the amount you get is known as the present value of it, है ना. जो मुझे आज से 1 साल के बाद मिलना है उसका प्रेजेंट वैल्यू, जो 2 साल के बाद मिलना है उसका प्रेजेंट वैल्यू. से आई एम रिसीविंग 1,000 रुपीज इन अ ईयर, तो नेचुरली 10% से अगर वो उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो 10% से डिस्काउंट कर देंगे. 10% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? दैट आई विल गेट ओनली 900 रुपीज. इन द नेक्स्ट ईयर आई विल गेट ओनली 800 रुपीज. फर्दर आई विल गेट अराउंड ऑफ 700 रुपीज ओनली. So I am getting what today I am finding out the value of it. That is known as the present value, right? We are calculating the present value. आज present में check कर रहे हैं कि मेरा क्या होगा. से आप इसी का opposite है future value. Future value कैसे calculate करेंगे? Any idea? Anybody? आप करते भी हैं. In your routine you usually do that.
जो कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करते हैं दैट इज फ्यूचर। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। आप जो एफडी करवाते हैं यस। या आप कोई सेविंग करते हैं, तो व्हाट यू डू, जब आप एफडी करवाने जाते हैं तो इमीडिएटली दे टेल यू कि आफ्टर 5 years दिस विल बी द अमाउंट वी विल पे यू, राइट, दिस इज द अमाउंट वी विल पे यू। दैट मीन्स उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता रहेगा, द क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट लगता रहेगा और आपका अमाउंट इतना बन जाएगा। से आपने 1 लाख डिपॉजिट करवाया तो उसका 1.25 लाख बन जाएगा आफ्टर से 2 years और 3 years, वट एवर जो आपने टेन्योर डिसाइड किया। दैट इज नोन एज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट, राइट। सो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी इसका, टोटली इनवर्स, कि जो मुझे उस वहां पर तब 1.25 लाख मिलने हैं उसकी वर्थ क्या होगी, if I am trying to find out that, right? So it will be what, the present value। अगर मैं आज पैसे जो आज मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ, आज मैं पैसे डिपॉजिट करवा रहा हूँ और उसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट लगकर जो पैसे मिलने हैं उसको कैलकुलेट करूंगा, दैट इज नोन एज द फ्यूचर वैल्यू। इज दैट फाइन? So it's very important. So first of all, you will try to find out the present value of any amount. Then you will try to find out the future value of any amount, right? So then, okay. Now there are certain investment evaluation criterias are there, right? So we generally consist of 3 steps. One is the estimation of cash flows, then the estimation of required rate of return, then application of decision rule for making the choice, right? So these we will follow the 3 steps basically. So in this case we will try to find out evaluation criteria हमारे क्या क्या होंगे। One is the non-discounting criterias are there and one are discounting criterias are there। Non-discounting means that हम टाइम वैल्यू का इफेक्ट उसमें कंसिडर ही नहीं करते, राइट। हम उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कोई कंसीडर नहीं करते, फैक्टर ही ये वाला कंसीडर नहीं करते। हम कहते हैं जो पैसे मिल रहे हैं वो तो मिल रहे हैं, वो जो एंड एंड वी बिलीव दैट द वर्थ ऑफ मनी इज कांस्टेंट। आप जितने भी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे देयर यू विल फील रीड दैट द बेसिक assumption इज, आपको लगभग कोई भी, अब यू पिक अप एनी थ्योरी, चाहे आप रिकार्डो की थ्योरी पढ़ लीजिए, रेंट थ्योरी पढ़ लीजिए, कोई भी, यू पिक अप एनी थ्योरी, so you will find that they will say that the worth of the money remains constant, right? So it's very important that, but certain theories says that no, there is a effect of value of money, right? So in the case of non-discounting cash flow criteria, we won't consider any effect of present value, that means a time value of money। but in the discounting cash flow, discounting means जब आप डिस्काउंट करेंगे उसको, डिस्काउंट का मतलब क्या है, आप जब उसके ऊपर पूरे इफेक्ट लगाएंगे, इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी लगा दिया आपने, मान लो कंसीडर एक टोटल एक रेट बना लेंगे आप, कि अगर आपका अपॉर्चुनिटी भी होता, कॉस्ट सब कुछ होता, तो आपका एक डिस्काउंट रेट रेडी हो जाता। तो वो डिस्काउंट रेट से आप उसको कम करके देखते हैं, देन यू फाइंड आउट व्हाट इज योर present value of the money, right? What is your present value of the money? So these are the 5 methods which are very important. They may ask you directly these questions, they may ask you what are the capital budgeting decisions, they may ask you like a evaluation criteria, what are the evaluation criteria. So the very first is the payback period method। payback period method means that मेरा पैसा कितनी देर में वापस आ जाएगा, राइट। मैंने से 1 लाख रुपया लगाया है और मेरा एक मेरे पास 2 प्रोजेक्ट है। इवेल्युएशन हम हमेशा जनरली इस तरह से करते हैं, हम ये देखते हैं वी ट्राई टू कंपेयर बिटवीन द 2 और 3 और 5 प्रोजेक्ट से, मान लीजिए। सो पहले वाले प्रोजेक्ट में मान लीजिए ए और बी प्रोजेक्ट है मेरे पास, और एक में मैंने दोनों में 1 लाख ही लगना है मेरा, बट जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए है, उसमें मेरी 50,000 और 50,000 नेक्स्ट ईयर रिटर्न आ जाएगी, राइट। एंड जो थर्ड
मेरा प्रोजेक्ट है, सेकंड जो प्रोजेक्ट है वो फर्स्ट ईयर में 35,000, फिर 35,000, और थर्ड ईयर में मेरे 30,000 आएंगे। विच प्रोजेक्ट इज बेटर? हाँ जी, which project is better? In first case it is 50,000 in the first year, second year 50,000 again. In the second case it is 35,000, then 30,000 in the third year, in the final year. Which project is better? Yes, please. Anybody? No, not getting the point. Is it that difficult? Sir, according to firm, I think 35%, 35% and 30% will be better. But according to investor, 50% will be better. Okay, okay. What a diplomatic answer. Okay. Anyhow, what else? What else? No, it's not like that. So as per both individually even and the investor always, पैसा जितना जल्दी आ जाए उतना अच्छा होता है ना? हमने अभी यही तो बात की है कि टाइम वैल्यू है उसकी, है ना? अगर वो 3 साल में आएगा, आना उतना ही है। सम टोटल इज 1 लाख अगेन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जितने में जल्दी में आ जाएगा। से अगर 2 साल में पूरा हो रहा है मेरा पैसा तो ज्यादा बेटर प्रोजेक्ट है। अगर 5 साल में जाके वही पैसा मेरा 5 साल में हो रहा है, होना उतना ही, आना उतना ही है। So if I say that one is कि एक पर्सन मेरे को ये कहता है that you will get a return in a project 50-50 हजार में 2 बार में आपकी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, और दूसरा पर्सन ये कहता है कि 10-10 हजार करके आएगी और 10 साल में आएगी। तो नेचुरली व्हाट आई विल से कि नहीं भाई, मैं तो 2 साल में बिजनेस खत्म करके अपना निकलूंगा ना, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द पे बैक पीरियड मीन्स in in how much time you will get your money back, right? बैक है ना? पे बैक मीन्स हाँ, वो कितनी जल्दी पे बैक कर देगा, वो प्रोजेक्ट कितनी जल्दी पे बैक कर देगा आपके पैसे को, राइट? सो इफ इट इज, जितना अर्ली होगा, जितना मतलब शॉर्ट ऑफ टाइम होगा, दैट वी विल सेलेक्ट द प्रोजेक्ट। एंड रिजेक्ट किसको कर देंगे? जो हमारा, जिसमें टाइम ज्यादा लग रहा हो, बिकॉज टाइम, अभी इसमें क्या है, टाइम वैल्यू हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बट टाइम कंसिडर कर रहे हैं, राइट? राइट, वन इज द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। नाउ यू चेक भी आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या आ रहा है, अकाउंट्स के हिसाब से रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है, जिसमें ज्यादा आ रहा है, जिसमें प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, तो यू विल कंसिडर दैट। सो आपकी परसेंटेज कितनी आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लेंगे, और उसमें आप बता देंगे कि आप, यू विल गो फॉर इट, राइट? वन इज द डिस्काउंटेड मेथड। ये बहुत बार आ चुका है, आपकी थ्योरी में आ चुका है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। One is the net present value, one is the internal rate of return, and one is the profitability index. So first of all, you need to understand what is the net present value. Net present value is, first of all, you will calculate the present value of all your cash flows. अब ये कैश फ्लो क्या चीज है? कैश फ्लो का क्या मतलब है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। वन इज कि आपने अभी अभी कितना पैसे लगाए हैं, राइट? दैट इज नोन एज कैश आउटफ्लो, राइट? एंड जितने पैसे आएंगे आपके, दैट इज कैश इनफ्लो, राइट? इनफ्लो जब आएंगे आपके, कैश इनफ्लोज आएंगे, तो यू विल कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकालें, पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो तो वही रहेगी, वो नेचुरली अभी लगा रहे हैं आप पैसे, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो जो होगी, दैट यू विल कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल। अब उसमें नेट का क्या इफेक्ट होगा, मतलब आउटफ्लो माइनस इनफ्लो देखेंगे। अगर इफ इट इज पॉजिटिव, then we will go for the project. If it is negative, we won't go for the project. Is that fine? से एक एग्जांपल कर लेते हैं so that you understand it well.
This is example of payback method. Payback method in project A, say the person is investing 2 lakh rupees and 40,000 uska every year the person is getting 40,000 rupees. In a 5 years he will be able to recover in a 5 year. In a project B, the person is investing 3 lakh rupees and but 80,000. Okay. This is the case of where there is a difference in the investment of the project, right? There is a difference in the investment of the project. So the answers may be different. Solution will be different, right? So in that case, they will be able to cover it in the 3.75 years. Even then the project B is better because here you are going for more investment and getting it early, right? अर्ली भी आ रहा है आपका, ऊपर से प्रोजेक्ट में अमाउंट भी आप ज्यादा लगा रहे हैं बट वो जल्दी आ रहा है, राइट? रिटर्न भी आपका ज्यादा आ रहा है उसमें, एज कम्पेयर टू इट डबल आ रहा है। इसमें 1.5 गुना ज्यादा पैसा लगा रहे हैं बट आपका रिटर्न जो है वो डबल आ रहा है ऑलमोस्ट। सो इट विल बी कवर्ड इन से 3.75। बट जनरली व्हाट वी डू इज वी ऑलवेज सी कि प्रोजेक्ट में पैसे इक्वल लगने चाहिए, ओनली देन यू विल get the real picture, right? So it's very important that but you don't consider demerits kya hai iski, that you don't consider the time value of money in it. That's very important, which is very important to understand. Now discounted cash flows. Discounted cash flows means the net present value in which you consider the year cash flows. कैश फ्लो 1 मतलब फर्स्ट ईयर में कितनी आई या फर्स्ट मंथ में कितनी आई, है ना? ये C2 मीन्स इन द सेकंड कैश फ्लो कितनी आई, या ईयर में आ रही है या मंथ में आ रही है, वट एवर इज द सिचुएशन. So C3 is there, C up to this nth term, right? So you will discount it by 1 plus k. 1 plus k means what? You will calculate the discount rate. आपका एक discount rate दे रखा होगा. In your case, most probably they must have given it, right? So what you will do? आपके जितने भी cash flows होंगे उनको add up करेंगे. Then you will reduce this part, the cash outflow, right? From the inflow, this is और पैसा आ रहा है और ये पैसा गया है, उसको आप reduce करेंगे. Then we will try to find out sum up of it. That means the net amount we will see. Then we will say कि whether the project is positive or negative. एक question कर लेते हैं इसमें से. Then we will understand कि what exactly I am saying, right? Just give me 1 minute. Now you see in this example, he's saying that a firm can invest rupees 10,000 in a project with a life of 3 years, right? 3 साल का कोई प्रोजेक्ट वो लगाने चाह रहे हैं और जिसमें की इन्वेस्टमेंट कितनी है 10,000 रुपीज की. So in the first year the return will be like this, 4,000, 5,000 and again 4,000, right? So if अगर हम पे बैक पीरियड देखेंगे तो 3 years में कवर हो रहे हैं पैसे, पहली बात. अगर इसके कंपैरेटिव कोई प्रोजेक्ट बी और बता रखा होता उसमें भी हम देख सकते थे कितने टाइम में कवर हो रहा है, राइट? सो अर्ली जितना कवर होगा दैट इज द बेटर प्रोजेक्ट इन द केस ऑफ पे बैक मेथड. बट इन दिस केस हम डिस्काउंटिंग करेंगे. अब हम ये जो 4,000 आ रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि दैट द वैल्यू आफ्टर अ ईयर
of this 4,000 won't be 4,000, वो थोड़ी कम हो चुकी होगी, राइट? और 5,000 की भी कम हो चुकी होगी, और 4,000 जो तीसरे साल में जाके मिलेगा उसकी तो और कम हो चुकी होगी. So what you do, you basically find out the discounting rate of it, right? Factor आप उसका डिसाइड करते हैं. So how you will do it? So in the first year, what you will do, 1 रुपी को डिवाइड करेंगे 1 बाय 1.10, राइट? 10% का, दैट मीन्स डिस्काउंट रेट उसने पहले ही हमें बता रखा है. दिस इज द डिस्काउंट रेट एवरी ईयर पर एनम. दिस इज 10% पर एनम, राइट? सो 1 रुपी को हमने डिसाइड, अभी हमने 1 रुपी की वैल्यू निकाल ली. दैट मीन्स 1 रुपी डिवाइडेड बाय 110, है ना? सो the basic formula will be what? 1 divided by 1 plus r, rate जो भी आपने लिया होगा. n means the number of years, right? First year, second year, third year, whatever the year is, right? So first की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? 0.909. सेकंड की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? सेकंड ईयर की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? This is the value of 1 rupee, right? And in this case it is the value of, in the third year, of 1 rupee. In the third year, what will be its value? लगभग 75 पैसे रह जाएगी. इसमें 82 पैसे रह जाएगी. इसमें वो कह रहा है 90 पैसे रह जाएगी लगभग वैल्यू 1 रुपी की, राइट? इज दैट फाइन? सो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई द होल कैश फ्लोज जो भी हमारे आ रहे हैं, दैट वी विल सी. सो द वैल्यू जब हमने उसको फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो 0 ईयर में तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई, राइट? प्रेजेंट वैल्यू कैसे लिखी है इसने? नहीं, ऐसे नहीं आएगी वैल्यू. वैल्यू विल बी बिट डिफरेंट. मैं आपको बता देता हूँ, वैल्यूज इसमें गलत हो गई हैं. एक सेकेंड. So first of all, the 4,000 will be multiplied by the 0.909. So the value will be what? 1,000 into 0.909. Yes, it's 3,636. ये मिसिंग अमाउंट है इसमें. इसमें आप चेंज कर सकते हैं. इट इज 3636. द अमाउंट विल बी व्हाट? 36 and 36. इन द केस ऑफ सेकेंड ईयर इट इज 5,000 into 8.826, right? 5,000 into 0.826. So your amount will be what? 4130. ये अमाउंट ठीक बनाई है उन्होंने. But in the third year, it will be what? Can someone calculate? 3636. Then 4130. In the last year, it will be what? 4,000 into 0.751. So it will be 3004. It is 3004. So the sum total of it will be what? 4130 plus 3636. So it comes out to 1,770, right? All right, is that fine? अब आप ये देखिए कि पैसे आपके टोटल कितने आ रहे थे. आपके टोटल पैसे कितने आ रहे हैं? 4,000 प्लस 5,000, 9,000 हो गए. 9,000 प्लस 4,000, आपके टोटल कितने आ रहे हैं? अप्रॉक्सीमेटली 13,000 आपके टोटल आ रहे हैं, राइट? बट उसकी वर्थ कितनी रह गई? उसकी वर्थ जो रह गई है, दैट इज 10,770. कितनी रह गई है? 10,770. अब इन सब का टोटल लगा लेंगे. ये फिगर्स ये ठीक नहीं है, प्रिंट ठीक नहीं आया वो. दिस इज 3636. दिस इज करेक्ट. 4130 इज करेक्ट.
and this is 3004. Okay, this is not 3.4, this is 3004. So the net present value, क्योंकि आपने 10,000 लगाए थे, that we will deduct. आपकी रिटर्न कितनी आ रही है इन एक्चुअल? 10,770, राइट. सो आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो आ जाएगी, दैट विल बी व्हाट, यहाँ पर आपने कैलकुलेट की, ये पार्ट आपने कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया आपका 10,770, और उसमें से डिडक्ट कर देंगे आप 10,000 रुपीज. सो योर नेट वैल्यू विल बी व्हाट, 770. इज दैट फाइन? बड़ा क्लियर हो रहा है पॉइंट? Yes. So now the point is, if it is positive, this NPV is positive, we will go for the project. If the NPV is negative, we won't go for the project, right? So we always check the discounting factors जो आपने लगाया है, उसके बाद मेरा जो net present value आ रहा है वो positive है या negative है. It's very important to identify it, right? So we consider the discounting factor in this case. That means we consider the time value of money in the case of NPV method, but we were not considering in the case of the payback period method, right? Okay. So one is the IRR concept, internal rate of return. So internal rate of return is the averagely you find out what will be my return. Then what you do is you try to equate between your initial investment and other discounted cash flows, right? उसमें क्या कर रहे थे, उसमें तो हम माइनस करके देख रहे थे, right? But in this case we will try to equate this. Equate करने के बाद we try to find at which rate we will be able to discount it, है ना? So what you do usually, आप क्या करते हैं इसको? आप first of all what you will do to equate it, है ना? So this says that it must be, this equation must be equal to 0. So you have to put this as equal to 0 minus, that means this equation whole excluding this should be equal to 0, right? So that means you will try to find out this R, किस discounting rate पर मेरा ये इक्वेशन जो है वो 0 हो जाएगा. बट दिस इज प्योरली अ हिट एंड ट्रायल मेथड. यू फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स अप, से आपने 10 ट्राई किया, फिर 12 ट्राई किया, एक मान लो एक प्रोजेक्ट का आपका 10 आ गया, दूसरे प्रोजेक्ट का आपका से 12 आ गया, तो नेचुरली जिस प्रोजेक्ट का हाई आया दैट वी विल सिलेक्ट. इफ IRR इज हायर, naturally we will go for that project. Is that fine? If in the project A you are getting 10% and in the project B you are getting 15%, naturally you will go for the higher one. That is very important. Is that fine? Shall we move further? Yes, sir. एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप अपने लेवल पे करके देखें. यू विल गेट सो एक एवरेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न वाला भी कर लेते हैं क्वेश्चन. से एनुअल आपका जो रिटर्न आया है, एनुअल प्रॉफिट जो आया है, तो एनुअल प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड बाय द एवरेज आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की है. सो दे से आपका एक प्रोजेक्ट में 33% आ रहा है और दूसरे प्रोजेक्ट में आपका 25% आ रहा है. जो भी आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद इट विल बी डिवाइडेड बाय द एवरेज इन्वेस्टमेंट. एवरेज इन्वेस्टमेंट मींस एक इन्वेस्टमेंट आपने इनिशियल में की हो या एक आपने क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट आपकी कोई शो कर रहा हो, तो उन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, एवरेज इन्वेस्टमेंट आपकी आ जाएगी. सो या फिर इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बताई हो सकती है कि दिस इज योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट.
So you will see कि what is the percentage of return you are getting on it. So average return अगर आपकी low आ रही है तो naturally you will go for the higher rate of return, right? So that is known as the accounting rate of return. But yes, in this case, one thing also we also consider, that is, we always consider that accounting rate of return जो है आपका वो एक मिनिमम रिटर्न से ऊपर होना चाहिए। एक मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो आपका है, से आईआरआर का जो भी रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है उससे एटलीस्ट ऊपर होना चाहिए। देन यू विल गो फॉर द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, है ना। उसके बेस पे आप डिसीजन ले लेते हैं। सम टाइम आप इनडिसिसिव हो जाते हैं। मान लीजिए अब दोनों केसेस में दोनों के प्रॉफिट्स दोनों के लेवल सेम आ गए, मान लीजिए आईआरआर जो है वो सेम आ गया, सो इनडिसिसिव हो जाता है आपका डिसीजन। देन यू गो फॉर द अनदर क्राइटेरिया। So there you generally use this ARR method, so that आपके दूसरे मेथड से आपको पता लग जाए कि आपके पैसे कितनी जल्दी और कितने परसेंटेज में कवर हो रहे हैं, राइट? हाउ मच परसेंटेज ऑफ रिटर्न यू आर गेटिंग ऑन द पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। दिस इज ऑल अबाउट your capital budgeting decision. I hope you will be able to cover it in your examination. And if anything you want to ask up to this from the capital budgeting decision or the financial management part, theory of the financial management, anything you want to ask. कोई चीज आपको नहीं समझ में आई, you want to repeat it, you just tell me. No? Okay. No questions? So we take a 1-minute break. Yes, yes. Capital. Okay. Okay. So we just take a break of 2 minutes, then I will cover up the cost of capital. Then we will go for the question papers. Is that fine? Sir, I have found some questions. Yes, It yes, is yes. good time to ask. Yes, yes. Sir, I have in the question paper, I have see some question like what Mm-hmm. is inflation accounting and what is social responsibility accounting. Social responsibility accounting and inflation accounting. Yes, Can sir. you show me the question paper? How will I show you, sir? Just share your screen. I stop presenting. You just share your screen. Can you see my screen, sir? Yes, yes, yes. Sir, here it is. If Okay. you can see the question paper. Uh-huh. So here it is written that it is in question paper of 2025 June, Okay. and Okay. and it is written here inflation accounting, social Okay. responsibility accounting, human resource Okay. accounting, forensic Okay. Okay. accounting. Okay. 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 Okay.
So can we just give me 2 minutes? मुझे 2 मिनट दीजिए. So we will two things are there. One is one of the topic, one more topic I want to cover up. Then half an hour we will go for the question papers, right? Okay, sir. Okay, sir. Is that fine that we take up after half an hour? Yes, sir. Yes, sir. In the Absolutely. last half an hour we will cover all the question papers, right? Okay, sir. Whatever So the questions will be there, I will cover that, right? So should just I give me a stop yes, this yes. sharing? You kindly stop it. So first of all, I will cover my own topic to which so we were talking about cost of equity. The cost of equity so we will cover up the cost of equity. Cost of equity क्या आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? अगर मैं इक्विटी फंड्स रेज करता हूं, so what will be my cost? अगर मैं इक्विटी फंड्स रेज करता हूं, what will be my cost? Anybody? No? No idea? Is my screen visible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Okay. See, हमने अभी बात की थी कि that we will cover up certain financial decisions. So financial decisions में that means the basic financing decision is कि मैं सबसे पहला decision तो हमारा होगा कि मैं कौन से funds raise करूं, right? Funds कौन से raise करूं means that कहाँ से पैसे मैं लाऊं अपनी कंपनी में लगाऊं, है ना? तो जब आप so there are so many sources. One is the debentures, one are the long-term loans, one is the preference capital, preference shares जिसको हम बोलते हैं. One is cost of equity capital, that is the equity shares जो हैं आप issue कर दीजिए, या फिर retained earnings जो हम अभी बात कर रहे हैं थोड़ी देर पहले, that की अगर हम पैसे अपने ही जो अपने earn किए हैं, profit earn किया है, उसको अगर हम retain कर लें, so what will be its cost? It's very important. So that is known as the cost of capital. जितना भी capital raise कर रहे हैं, उसकी cost क्या होगी, कीमत क्या होगी? तो in the case of debentures क्या होगी cost? ये तो बता ही सकते हैं आप लोग. The interest rate we will pay off, right? Say in the cost of term loan क्या होगी? Naturally आप क्या pay off करते हैं उसके against? Interest, right? So if you are borrowing funds from the bank or any financial institution, then you will pay off what the cost of it, right? So how we will calculate, we will discuss it later. But the point is, say in the preference capital, again it is the fixed part, fixed रहेंगे, but debenture का जो rate of interest रहेगा वो भी fixed रहेगा जब आप debentures issue करते हैं market में. So it's acknowledgement of debt, kind of acknowledgement of debt. So you issue in the market. So एक certificate आप लोगों को दे देते हैं and you get a money. But that certificate says that, say it is of 10% or 20%, जो भी आप पैसे ले रहे हैं उसके ऊपर आप annually rate of interest जो देंगे वो that will be set, जितना भी 10 या 20% जो भी आपने लगाया, that वो 10 या 20% जो भी आप उसको पैसे देंगे, है ना, rate of interest जितने साल के लिए देंगे, जब तक के लिए देंगे, so that will be your cost of debenture, right? Say
इन द केस ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो नेचुरली इंटरेस्ट विल बी द कॉस्ट ऑफ योर कैपिटल. सो इफ यू आर गोइंग फॉर द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, नेचुरली इसमें भी फिक्स डिविडेंड होता है, मैंने पहले बताया था. इसमें भी रेट ऑफ डिविडेंड हम पहले डिसाइड कर लेते हैं. दिस इज द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, so that you need to pay. Then cost of equity capital, इक्विटी को जब हम देते हैं तो वो दैट इज द डिविडेंड यू अनाउंस, दैट डिविडेंड बिकम्स द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. जो भी आप उसको डिविडेंड देंगे, बचे हुए पैसे जो भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप, दैट विल बिकम योर कॉस्ट फॉर द फर्म, राइट. देन देयर इज ए कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग. कुछ पैसे तो आपने डिविडेंड में दे दिए, कुछ पैसे रिटेन कर लिए, अभी जो रिटेन किए हैं उसकी भी कुछ कॉस्ट है, राइट. सो क्योंकि कॉस्ट इसलिए है, मैंने पहले बताया, हर चीज में हम एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जरूर चेक करते हैं. व्हाट इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन इट. सो वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट इफ अगर मैंने उसको रिटेन किया है तो उसके ऊपर क्या खर्चा आ सकता है. दैट आल्सो यू हैव टू मेंटेन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो हम वन बाय वन ये 2-3 डिस्कस करेंगे, देन वी विल गो फॉर द फाइनल क्वेश्चन पेपर्स. So concept, I hope you are clear about the concept. So cost of debenture, what will be the cost of debenture? So he is saying that cost of debenture क्या क्या होगी. One is the interest part and one is the redemption value, है ना. आप जब रिडीम करने जाएंगे डिबेंचर को, हो सकता है उसकी आपने कोई पहले ही प्री डिटर्मिन्ड वैल्यू भी रख रखी हो, है ना. एक तो है कि आपको रेगुलर इंटरेस्ट मिल रहा है, एक आपको ये भी हो सकता है कि आपको एक फिक्स्ड अमाउंट भी मिले, फ्यूचर वैल्यू भी मिल जाए उसकी. मान लीजिए एक तो है कि आपने 1 लाख रुपीस का डिपॉजिट करवाया था, तो 1 लाख के अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट आ रहा था, से मान लीजिए 1,000 रुपया या 10,000 रुपये एवरी ईयर आ रहा था. वन इज जब आप रिडीम करने गए, रिडीम का मतलब क्या है, जब आपने कहा कि डिबेंचर्स मेरे वापस कर दो, मैंने जो आपको सर्टिफिकेट्स दिए थे वो वापस कर दो और मैं आपको उसकी फेस वैल्यू देना चाह रहा हूँ. सो यू विल चेक कि आपकी अब वैल्यू कितनी रिडीम करनी पड़ रही है आपको. रिडीम मान लो उस टाइम पे आप 10,000 की जगह उसको 11,000 पे दे रहे हैं, तो दैट यू विल कंसिडर दैट अमाउंट, है ना. तो आपकी दो बेसिकली कॉस्ट पड़ गई. वन इज एक रेगुलर इंटरेस्ट पड़ गया, और जब आप एक मेच्योरिटी पे अमाउंट देनी पड़ गई आपको, दैट यू विल कवर अप, राइट. So this is very important. So cost of debt will be what? So cost of debt, he is saying that it will be what? The future value divided by cost of debt divided by 1 plus cost of debt. Cost of debt क्या रहेगी हमारी, हम कैलकुलेट करेंगे. कॉस्ट ऑफ डेट हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे. कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स. अगर हम इंटरेस्ट देंगे, देखिए इस पे बहुत ध्यान से देने वाली बात है कि अगर हम इंटरेस्ट देंगे तो हमारा टैक्स भी तो बचेगा फर्म का कि नहीं बचेगा? एनीबॉडी? ओके. से इंटरेस्ट मेरा अगर जा रहा है 10,000 रुपीज़, तो उसके ऊपर टैक्स भी तो बच गया होगा हमारा. 50% टैक्स है मान लो, तो 50% वो भी पैसे बच गए होंगे. सो एक्चुअल में तो मेरे 50% ही गए होंगे उसमें, राइट. देन रिडीम वैल्यू माइनस दी रिडीम वैल्यू. एफ मीन्स व्हाट? दी रिडीम वैल्यू. रिडम्पशन वैल्यू जो भी आपने ली है, प्राइस ऑफ द डिबेंचर जो है वो हो जाएगी, माइनस दी परचेज वैल्यू क्या थी उसकी, या नेट अमाउंट रिलीज पर डिबेंचर, रियलाइज्ड पर डिबेंचर जब आपने दिए थे, इशू किए थे डिबेंचर, वो डिवाइडेड बाय द मैच्योरिटी पीरियड. अगेन एवरेज ऑफ इट, in the bottom we will take the average of it. So we will calculate the cost of debt. So but we consider in the interest part we consider the taxation benefit also, right. And then naturally there is a difference between the present and the past, है ना. present means what? कि इस टाइम पर आप कितने का उसको वापस ले रहे हैं, है ना. हो सकता है आप कोई इसमें डिफरेंस ना हो, जितने का आपने सेल ऑफ किया था उतने का ही सेल ऑफ हो जाएगा, तो रिमेनिंग आपका कॉस्ट क्या रह जाएगी? सिर्फ ये पार्ट, दिस पार्ट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और
One is cost of equity. Cost of this is cost of हाँ cost of preference dividend. ये भी ऑलमोस्ट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑलमोस्ट सेम होता है विद द डिबेंचर्स, बस इसमें इंटरेस्ट की जगह आपका डिविडेंड आ जाता है, क्योंकि इसमें फिक्स आपने देना है पार्ट, है ना। और जब आप रिडीम करेंगे अपने प्रेफरेंस शेयर्स को, तो उसका वैल्यू अगर उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है तो दैट यू विल कंसिडर, राइट। इज दैट फाइन? बट इसमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज मैंने पहले बताया था कि जो डिबेंचर्स को इंटरेस्ट दिया जाता है वो इंटरेस्ट वो टैक्स लगने से पहले दिया जाता है, बट जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसको हम डिविडेंड अपोर्शनमेंट बोलते हैं, दैट इज डन आफ्टर द इंटरेस्ट, राइट। सो आफ्टर द इंटरेस्ट एंड टैक्स, सो इसमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं हमें मिलता इन द केस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, है ना। प्रेफरेंस शेयर्स को क्या क्या दोगे? एक तो डिविडेंड दोगे, बट डिविडेंड में हमें टैक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, विच वाज अवेलेबल इन द केस ऑफ डिबेंचर्स, राइट। और इसका एक हम वैल्यू निकाल लेंगे, जो फ्यूचर वैल्यू होगी, जो भी हम जब शेयर्स को रिडीम करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेंगे, तो उसकी भी एक वैल्यू होगी। तो उस वैल्यू में से हम चेक करेंगे कि वेदर वी आर doing it at par or we are doing it at a higher amount, then we will see, है ना। Okay, is that fine? Shall we move further? But here you won't get any tax benefit. Then you will go for cost of equity. Any idea about cost of equity? क्या होगी हमारी कॉस्ट? अभी बात की थी मैंने। डिविडेंड, हाँ, डिविडेंड विल बी द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इट विल बी व्हाट द डिविडेंड, क्योंकि आप उसके ऊपर जो भी डिविडेंड देंगे, एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो भी देंगे, दैट विल बिकम योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, राइट। अब डिविडेंड कैसे देंगे? हमने पहली बात कर ली है कि हमने सबसे पहले इंटरेस्ट दे दिया, उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड भी दे दिया। अब जो पैसे बचेंगे वो सारे के सारे पैसे हम डिविडेंड पे दे देंगे, बट उसमें भी थ्योरीज लगाएंगे कि कितने पैसे रख लें और कितने पैसे दे दें। सो डिविडेंड बिकम्स द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो अब उस पर ग्रोथ फैक्टर भी लगा लेते हैं हम। अभी तो है कि हम नॉर्मली कितना दे रहे हैं, प्लस हम ग्रोथ फैक्टर भी लगा लेते हैं। ग्रोथ भी मतलब फ्यूचर में हो सकता है और बढ़ाकर देना पड़ जाए या ग्रोथ हो जाए उसमें। तो जब आप शेयर्स को कल अगर रिडीम करने गए, मान लो आपने बाय बैक किया, सो व्हाट यू विल डू, यू हैव टू पे द हायर अमाउंट एज कंपेयर टू द फेस वैल्यू, वो भी आपको देनी पड़ सकती है। सो दैट इज ऑल्सो द कॉस्ट, बट जनरली जब हम कंसिडर करते हैं दैट वी ओनली कंसिडर द डिविडेंड पार्ट ऑफ इट, राइट। इज दैट फाइन? सो दैट बिकम्स द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो देन cost of debenture and cost of debenture and term loan are almost similar, right? क्योंकि उसमें भी इंटरेस्ट का ही रहता है, इंटरेस्ट ही आपने देना है, इंटरेस्ट का बेनिफिट वही सेम रहेगा, टैक्सेशन बेनिफिट उसमें रहेगा, so you will calculate that, right? So then you have retained earnings. So generally we consider it as a cost of retained earning is generally equivalent to the cost of equity, right? But उसमें वो ये कहता है कि cost of equity जो है उसमें growth factor भी include रहता है, right? So growth factor का क्या मतलब है? उसमें growth हो सकती है। आज मान लीजिए आप 10,000 दे रहे हैं, कल आप 20,000 देने लग जाएं, कल आप 30,000 देने लग जाएं। So growth factor is there in the case of cost of equity, but in the cost of retained earning that is not there, right? So this is the basic difference they consider it.
एज ए, बट आपको कॉस्ट तो पड़ती है उसकी भी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी आपको इज जनरली इक्वलेंट टू द कॉस्ट ऑफ दी कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिटेन अर्निंग। व्हाई सो? देयर इज ए रीजन दैट अगर आपने आज मान लीजिए पैसे जो थे आपके वो आपने रिटेन कर लिया, राइट, आपने रिटेन कर लिया, आपको ये लगा कि नहीं यार ये कंपनी में ही वापस पैसा लगाते हैं, नॉर्मली वी थिंक लाइक दिस। सो अगर आपको कल फ्यूचर में एक्सपेंशन के लिए पैसे की जरूरत पड़ गई, व्हाट यू विल डू? यू विल रीइश्यू द शेयर्स। व्हाट यू विल डू? यू विल रीइश्यू द शेयर्स। आप नए इश्यूज करेंगे, निकालेंगे। अब अगर आपने वही नहीं निकाले होते, शेयर्स की वैल्यू को इंक्रीज किया होता, तो वो आपको बेनिफिट मिल गया होता। आपने एज ए डिविडेंड दिया होता तो फेस वैल्यू शेयर की वैल्यू बढ़ गई होती, बट आपने तो ये नहीं किया, आपने तो क्या किया, रिटेन कर लिया। अब जो रिटेन कर लिया उसकी कॉस्ट तो बट आपको इम्प्लिसिटली पड़ रही है ना, इम्प्लिसिट तो कॉस्ट है वहां पे। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है उसकी? दैट इज दैट यू हैव टू पे अ डिविडेंड ऑन इट। तो आप जब नया इशू करेंगे और नए इशू के चक्कर में आपको डिविडेंड उसके ऊपर देना पड़ेगा। So that's why it is always equal to, generally we call it as a equal to the cost of equity, retained earnings. Is that fine? I think, I hope this we are clear about it. So yes. One part is the weighted average cost of capital. Weighted average means that what you do is VACC is a weighted average cost of capital, in which we say that अब हमने सोर्सेस तो सारे लगा लिए, हम सोर्सेस सारे भी यूज कर रहे हैं, बट किसको हम वेट्स देंगे? हर 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 कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम वेट्स अनाउंस करेंगे, राइट? सो व्हेन यू असाइन अ वेट्स टू एवरी कॉस्ट एंड यू सम अप ऑल द दीज थिंग्स, है ना, आपने इफेक्ट तो सबका ही लेना है। आपने डेट भी रेज करना है, आपने इक्विटी भी रेज करना है, आपने प्रेफरेंस भी लेना है, बैंक से लोन भी लेना है। सो व्हाट यू डू, आप चारों को ले लिया मान लीजिए आपने। सो these four are your basic source of funds, है ना। so what you will do, आप एक एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेजली कॉस्ट क्या पड़ रही है। so you assign certain weights and then you find out the weighted average cost of capital। तो आप सबका सम टोटल निकाल लेते हैं। तो देन यू कैलकुलेट, आपने सारों की कॉस्ट निकाल ली, जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल ली, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग निकाल ली, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकाल ली, कॉस्ट ऑफ डेट निकाल लिया, दिस कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल दिया, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग निकाल लिया आपने, सेम ही आया। सो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकाल लिया आपने, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स निकाल लिया आपने, राइट। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स निकालने के बाद आपने क्या किया, तो अब आपने एक प्रपोर्शन निकाल ली भी, उसके वेट्स कितने हैं, उसकी प्रपोर्शन कितनी है, से उसकी प्रपोर्शन आपका 420 टोटल होगा, और उसकी प्रपोर्शन क्या है, से इक्विटी की प्रपोर्शन क्या थी 120 की, रिटेन्ड अर्निंग की प्रपोर्शन क्या थी 110 की मान लीजिए, प्रेफरेंस शेयर्स आपने 20:140 टोटल जो आपका होगा टोटल कैपिटल उससे डिवाइड करके देखेंगे, प्रपोर्शन आपने निकाल ली, उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर एक आप आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलाएंगे। दैट मीन्स एक तो है कि इंडिविजुअल क्या कॉस्ट पड़ेंगी आपको, वन इज दैट आपकी एवरेजली कॉस्ट क्या पड़ेगी। आप चारों को मिलाकर जब कॉस्ट कैलकुलेट करने लगेंगे, देन यू विल कैलकुलेट इट लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैलकुलेट द वेट्स, you will multiply it with the cost of it, then आप उसको sum up कर देंगे, then you will get the weighted average cost of capital। weighted इसलिए उसकी weightage कितनी है उसमें, in the total weightage कितनी है उस particular cost की, उसको multiply करेंगे, then आप एक averagely cost निकाल लेंगे, average आपकी cost कितनी आ रही है उसमें, that you will check। this is very important part, ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो उसमें हम क्या करते हैं, what we do is we cost first of all calculate the each and every cost, then we calculate the weights means proportion of it, उसका proportion कितना है, से इक्विटी का proportion कितना है, वन से मान लो 1,20,000 टोटल हमारा है, 4,20,000 हमने रेज किया हुआ है, इक्विटी हमने जो रेज किया है 1,20,000 है, और ये जो आपने रेज किया है रिटेन्ड अर्निंग है, मतलब जो आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं की वो 1,10,000 है, और प्रेफरेंस में आपने 20,000 ही सिर्फ रेज किए हैं, और आपने डिबेंचर्स में आपने 80,000, ये VI क्या लिया है, इन्वेस्टमेंट लिया होगा, कोई अदर इन्वेस्टमेंट आपने
के अगेंस्ट आपने लिया होगा कोई पैसा, राइट, या फिर आपने लोन लिया होगा उसका होगा, राइट. सो यू विल कैलकुलेट दोज वेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट दी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. दैट्स एवरेजली मेरे को जो कॉस्ट पड़ रही है, दैट इज 14.7% से, राइट. सो यू विल फाइंड आउट द एवरेजली कॉस्ट आपको कितनी पड़ती है, राइट. सो वन इज इंडिविजुअल कॉस्ट, वन इज द एवरेजली आपको क्या कॉस्ट पड़ रही है, दैट यू विल ऑलवेज कंसीडर. इज दैट फाइन? बेटा समझ में आ गया है? Yes, sir. Okay, so now we will take up some questions. Question papers आप show कर सकते हैं. Yes, someone was showing the question papers. हाँ, मेरे को कल भी भेजे थे. That is also there. एक second. Yeah. This is the December Master of Computer Application new term and examination December 2024. Okay. So the very first is asking you about the write a short note on any four of the following. Going concern concept हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि business will go forever. We always feel like that. This is the basic concept you follow. Whether the men will come, men will go, but the concern will go forever, है ना. लोग आएंगे जाएंगे बट आपकी कंपनी हमेशा चलती रहेगी. एक्रूवल कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था कि दैट वी प्रिपेयर अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूवल. मैचिंग कंसेप्ट, दैट मीन्स we always try to match between the debit and credit, liability and the asset all the time. ये क्या हुआ? Okay, one is conservatism. हमने पहले बताया था कि we will conservative approach, we apply always the conservative approach. These are the certain concepts which are very important, where in the very beginning we had covered this part while studying the accounting. Then the materiality concept is there. Materiality concept, that means in the money terms you can materialize it. That is also very important. So short notes आपको आ रहे हैं. One is the tangible and yes, this is all the analysis of the balance sheet basically. अब ये आपको ये पूरे चैप्टर मिल जाएगा इसका एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट. टेंजिबल एसेट्स क्या हैं, इंटेंजिबल एसेट्स क्या हैं. टेंजिबल मींस टू विच यू कैन टच एंड यू कैन फाइंड आउट भी हाँ ये हैं, एक्चुअल में हैं, यू कैन फिजिकली वेरीफाई इट, है ना. आप कई बार देखते होंगे आपका एक ऑडिट होता है नॉर्मल, और एक तो नॉर्मल ऑडिट होता है. वन इज द फिजिकल ऑडिट. फिजिकल ऑडिट में आप जा कर एक एक चीज़ चेक करते हैं ऑफिस की. मान लो भी आपने अलमीरा भी चेक कर ली, टेबल भी चेक कर लिया, कंप्यूटर भी चेक कर लिया. बट ओनली टेंजिबल थिंग्स. जो इंटेंजिबल का मतलब क्या, जिसको आप टच फील नहीं कर सकते, पता नहीं लगा सकते कहाँ है या नहीं. गुडविल ऑफ द पर्सन. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आप पता नहीं लगा सकते हुए थे कि नहीं हुए थे, बट अभी भी अमोर्टाइजेशन उसकी चल रही है. बट वो तो आज से 10 साल पहले हुए थे या 5 साल पहले हुए थे, अभी भी उसकी अमोर्टाइजेशन चल रही है. यू वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई इट. दोज आर द इंटेंजिबल एसेट्स. देन इज करंट एसेट्स एंड द करंट लायबिलिटीज. वी ऑल नो रिजर्व्स एंड प्रोविजंस आर देयर. कंटीजेंट एसेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज. कंटीजेंट एसेट्स में हमने डिस्कस किए थे, कंटीजेंट लायबिलिटीज में हमने डिस्कस की थी. इसे आपकी कोई लिटिगेशन चल रही है, उसमें अभी आपका कोई डिसीजन नहीं हुआ है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डिस्क्लोज ऑल द कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड द कंटीजेंट एसेट्स. तो जहाँ आपके लिए ये लायबिलिटी हो सकती है और एसेट भी तो हो सकता है. आपको डाउट है कि ये मेरा आपका कोई एसेट था जिसके ऊपर अब डिस्प्यूट आ गया है, तो नेचुरली आप अभी तो उसको कंसिडर करके चलेंगे. हो सकता है यू मे लूज इट इन दी केस, बट जनरली हम पॉजिटिव होकर चलते हैं, तो दैट वी विल पुट इट इन दी कंटीजेंट केस, राइट. देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हम कर चुके हैं. Quality of analysis is dependent upon the following information depicting the financial statement. Do you agree? The quality of analysis is dependent upon the quality of information depicted. Naturally, ये जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मैंने पहले बताया था इंफॉर्मेशन ड्रिवन, एवरीथिंग इज इंफॉर्मेशन ड्रिवन. सो mere figures won't give you any information. The time you will
draw certain interpretation from it. You will draw certain patterns from it. आपका डेटा आ गया, you will draw one pattern for it. ये पहले 10 था, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया. So there is a pattern you always follow. Outliers you find out. Outliers means अचानक 10 से आप 100 पे आ गए, 100 से आप 500 पे आ गए. तो ये यूजुअली होता नहीं है. मान लो आपकी कंपनी में कि इस बार 10 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, अगली बार 100 करोड़ का हो गया, उसके अगली बार 500 करोड़ का हो गया. इट्स नॉट लाइक दैट. सो यू हैव टू फाइंड आउट द रीजंस, है ना. इंफॉर्मेशन आपको पूरी देनी चाहिए. एवरीथिंग इज देयर. सो दिस one thing is which is very important. You people are of say of computers, है ना. So you won't understand कि इसको आंसर्स कैसे देने हैं. Do you agree means कभी भी ना आपने outrightly एक साइड नहीं होना है. Because you have to answer it like a manager. So manager can't be always on the one extreme. They have to be balanced. The balanced managers are the best managers. So आपको आंसर जो है yes no से शुरू नहीं करना. आपने first of all give its merits, give its demerits, then you certainly say that 90% you agree and 10% you don't agree, है ना. तभी तो उसने क्वेश्चन पूछा है ना. तो there must be certain theories which belongs to they don't agree, right? So quality मैटर नहीं करती, कुछ बहुत सारे लोग कहेंगे. क्वांटिटी मैटर करती है, बहुत सारे लोग कहेंगे. क्वांटिटी ज़्यादा होगी तभी तो आपका एनालिसिस सही होगा. क्वालिटी से क्या होता है? Someone may say like this, right? So it's very important. So how you answer, है ना. जब आपने आंसर देना है, so you must write about the merits of it, demerits of it, then you conclude your answer. You must conclude your answer as a manager. Whenever you are writing these answers, you must write it as if you are a financial advisor of your company, right? So as a financial advisor of the firm, you will conclude your reply. You won't write conclusion word, but yes, you will conclude your remark, right? One is high current ratio may also indicate lower efficiency in the asset utilization. हाँ, higher current ratio. अब current ratio के benefits हमने पढ़े थे, तो हमने ये भी कहा था कि हमने एक रेशियो रखा था that it should be 2:1. करंट रेशियो हमने डिसाइड किया था 2:1 कि दैट बी जो करंट एसेट्स हैं आपके डबल होने चाहिए एज कम्पेयर टू दी योर करंट लाइबिलिटीज. अब वो कह रहा है कि अगर हायर होगी व्हाट विल हैपन. डू यू एग्री? वो कह रहा है इंडिकेट्स द लोअर एफिशिएंसी इन द एसेट यूटिलाइजेशन. इसका मतलब आप एसेट्स को सही यूटिलाइज नहीं कर रहे हो. डू यू एग्री एंड यू जस्टिफाई योर आंसर. एनीबडी वांट्स टू अटेम्प्ट इट? Yes, please. हाँ जी, बोलता ही नहीं. No idea? At least say yes or no. I won't mind. Higher current ratio. Current ratio should be 1:1. So higher would be not bad. Higher will be bad. 2:1. Okay, 1:1 आप कह रहे हैं, वैसे 2:1 है. 2:1. अब मान लीजिए, देखिए सी अब वो ये कह रहा है कि अगर आपकी रेशियो जो है करंट हाई करंट रेशियो है, मे बी ऑल्सो इंडिकेट द लोअर एफिशिएंसी इन द एसेट यूटिलाइजेशन. अगर आपके एसेट्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं और लायबिलिटी बहुत कम है, तो वो कह रहा है क्या ये एसेट यूटिलाइजेशन जो है वो लोअर एफिशिएंसी हो रही है क्या? मतलब क्योंकि रिटर्न आपकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी. नो नॉट एट ऑल, है ना. आपकी रिटर्न तो बहुत ज़्यादा हाई होती जा रही है. इसका मतलब आपके एसेट्स के अगेंस्ट आप बहुत अच्छा यूटिलाइज आप उसके प्रॉफिट्स जनरेट कर रहे हैं. दैट्स वाई आपकी लायबिलिटीज़ जो है वो पेड ऑफ है. दैट्स वाई करंट लायबिलिटीज़ आर लो. बट येस, यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके जो एसेट्स हैं वो आप ज़्यादा क्रिएट करते चले जा रहे हैं. मैंने पहले बताया था मॉडरेटली आपको करंट एसेट्स में पैसा रखना है. क्योंकि अगर आपने मॉडरेटली नहीं रखा, मान लीजिए अब करंट एसेट्स को बढ़ाने के चक्कर में आपने कैश ज़्यादा रख लिया, व्हाट विल हैपन? या बैंक में आपने डिपॉजिट ज़्यादा रख लिया. एज ए कंजर्वेटिव अप्रोच आपने कैश ज़्यादा रख लिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो जाएगा. यस, आप अगर उसी पैसे को
कहीं और लगाते तो नेचुरली आपको इनकम निकल के आती। तो इसका मतलब ये है कि आपने ज्यादा भी करंट एसेट्स मेंटेन नहीं करने हैं, राइट। सो आपको बोथ वे ये आंसर देना है कि आपको एटलीस्ट कुछ लेवल तो मेंटेन करना है एज पर दी इंडस्ट्री लेवल्स भी होते हैं, कुछ फर्म के खुद के लेवल्स होते हैं, तो एवरीथिंग यू विल फॉलो इट, राइट। वन इज द फिफ्थ क्वेश्चन इज द फाइनेंशियल गोल ऑफ द फर्म शुड बी मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड नेट वेल्थ, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का पूरा हमने डिस्कशन किया था। सो यू कैन जस्टिफाई दैट व्हाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। डू यू एग्री में आपने अपनी स्टेटमेंट्स देनी है। पहले हमेशा कोशिश करिए जिसको जनरली हम एक्सेप्ट करते हैं, जिस प्रपोजिशन को हम जनरली एक्सेप्ट करते हैं, वी विल ट्राई टू राइट दैट फर्स्ट, है ना। अगर आप नो की तरफ ज्यादा हैं तो नेगेटिव में आप पहले चलेंगे, फिर पॉजिटिव की कुछ लाइनें लिखेंगे, देन यू विल कंक्लूड योर कमांड। तो यू कैन जस्टिफाई ऑल्सो, जस्टिफाई भी आपको करना पड़ सकता है कि जस्टिफाई मीन्स दैट हाउ इट इज प्रूव्ड, है ना। Radha Dairy Limited decided to diversify its business and seeking your advice to invest in the surplus funds on the profitable project. Okay. ये अभी जो हम पे बैक पीरियड मेथड एंड मेथड्स अभी करके हटे हैं उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है एक। सो कैश फ्लोज यू विल चेक, कैश फ्लोज कितने आ रहे हैं, डिस्काउंटिंग रेट उसने बता रखा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 1 रुपी की बता रखी है उसने 10 रुपीज़ के हिसाब से, 5 का उसने 5 पॉइंट समथिंग का बता रखा है, और 8 ईयर्स का वैल्यू बता रखा है। So this few of the questions, if you will do this similar question, you will find over there. One is the treasury management mainly deals with working capital management and financial risk management. Oh, treasury management हमने बहुत शुरू में किया था, and the working capital management and the financial risk management. Financial risk is then when you check what are my financial conditions, and finance में risk कहाँ कहाँ हो सकता है, where my money may go, है ना। So you will decide the financial risk part also. So finance में आपके कहाँ कहाँ पे अपने पैसे जा सकते हैं, इरोड कहाँ कहाँ पैसा हो सकता है, so पैसे कितने मेंटेन करने हैं। वर्किंग कैपिटल में आपने डिसाइड करना, वर्किंग कैपिटल में एक दो थ्योरीज आप पढ़ेंगे। सो उसमें ये रहता है कि वन इज दी आपने करंट में कितना रखना है पैसा, फिक्स में कितना रखना है, और हेज में कितना रखना है। अब ये जो कॉम्पोजिशन है, लॉट मेनी फर्म्स डिसाइड एट देयर ओन लेवल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ फर्म दे हैव एंड कितने टाइम के लिए चाहिए, क्या है, एवरीथिंग यू डिसाइड। तो सम everybody in individual life also someone everybody decides about their working capital कि मेरे को फिक्स एसेट्स में कितना डालना है और वर्किंग कैपिटल में कितना डालना है, राइट। देन दे आर टॉकिंग अबाउट रिसेशन, प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट इंक्रीजेस, इंटरेस्ट रेट, what will be the effect of the following changes on the level of firms receivables. Okay, oh, receivable management, this is receivable management. Okay, हमने एक फॉर्मूला किया था ऑफ इन हाउ मच टाइम यू विल रिकवर योर मनी, है ना। तो देयर बाय यू चेक भी आपके रिसीवेबल्स जो हैं, रिसीवेबल्स मींस दैट पैसे आपके जो आने हैं वो कैसे आप मैनेज करोगे, डेटर्स को आप कैसे मैनेज करोगे, अगर रिसेशन आ जाएगा व्हाट विल हैपन, सो वैल्यू विल बी डिप्लीटेड, सो हाउ यू विल मैनेज इट। प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट इंक्रीजेज, अगर आपकी प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी नेचुरली, जो आपके अगर आपके पिछले पैसे नहीं आए होंगे, हाउ इट विल इफेक्ट, नेगेटिवली इट विल इफेक्ट, राइट। सो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, और अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा नेचुरली आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, दिस विल, क्योंकि आपको तो आगे पेमेंट करनी है, आपका इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हो पाएगा, इंक्रीज हो जाएगा तो, और दैट विल डिप्लीट द फर्म, चेंजेस इट्स क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम 2:10 नेट 30 3:10 नेट 30। ओके, आपने कोई प्रपोर्शन डिसाइड की हुई है और नेट 30 रखते हैं आप उसको, दैट मीन्स आप कुछ अपनी क्रेडिट टर्म्स को चेंज करते हैं, से आपने पहले रखा हुआ था 20%, अब आपने 30% कर दिया किसी चीज़ को। सो प्रपोर्शन को ऑफ योर क्रेडिट सेल्स से, मान लीजिए क्रेडिट टर्म्स जो है आपकी, क्रेडिट सेल्स आपने चेंज कर दिया, प्रपोर्शन उसका चेंज कर दिया, सो व्हाट विल हैपन,
सो अगर अब आपने उसको 30% कर दिया है तो नेचुरली वो हायर, इसका मतलब क्रेडिट आप देना शुरू कर दिया। अब उसका इफेक्ट या तो पॉजिटिव भी हो सकता है, अगर जल्दी पैसे आ रहे हैं तो अच्छा हो जाएगा, नेगेटिव अगर कम आ रहे हैं तो नेचुरली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। इज दैट फाइन? शैल वी मूव फर्दर? Yes, sir. Okay. This was all about the December 2024. Now one is that means आप कैश मैनेजमेंट एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट कर लीजिए, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट दैट चैप्टर। बट अगर आपको लगे यू कैन कवर इट, देन कवर अप द कैश मॉडल्स एंड द रिसीवेबल मॉडल्स। अदरवाइज जस्ट कंसेप्ट को पढ़ लीजिए, उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए, हाउ इट विल अफेक्ट, अपना कॉमन सेंस लगाइए एंड डू दैट क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन उसने फाइनल अकाउंट्स का पूछा है। फाइनल अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन पूछा है। इसमें कोई नॉर्मल एंट्रीज हैं जो हमने लगभग क्वेश्चन किया था, वही सिमिलर क्वेश्चन है ये, ऑलमोस्ट जो हमने क्वेश्चन किया था सिमिलर है ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल का। एक बार फिर से आप ज़रूर कर लें so that you easily understand. If someone gets any kind of problem, I'm writing my email ID in the chat box. You may send your question on it. I've shared my email ID whereby you can share your question if you are finding any difficulty in the particular question. So this is all about the accounting concept. Then you will find out accounting concept में से business entity concept, cost concept, going concern concept, materiality concept, ये मैंने आपको बताया था। इसमें से लगभग क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। So one is the financial ratio. फाइनेंशियल रेशियोज हमने कवर की थी कुछ, उसमें हमने सॉल्वेंसी रेशियोज भी कवर की थी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो फाइनेंशियल रेशियोज आपने कवर करनी है, और देन यू विल कवर अप सॉल्वेंसी रेशियोज, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। हमने सारी रेशियोज कवर की हैं, ये आप कवर कर लेंगे, रेशियो एनालिसिस का पूरा चैप्टर। देन what do you understand by cost of capital, जो अभी हम बात कर रहे थे। explain the various constituents of capital and discuss how equity capital is determined, है ना? so capital के constituent क्या क्या हो सकते हैं, हमने पहले ही बताया था कि sources मेरे क्या क्या हो सकते हैं। 4 हमने basic sources ढूंढे थे। one is equity, one is debenture, one is term loan and retained earnings। तो constituent क्या क्या हो सकते हैं वो बता दिया हमने। फिर उसने cost of capital equity capital पूछ ली, जो कि हमने dividend अभी डिसाइड किया था that the dividend will be the cost of equity, right? so ये आप बता सकते हैं with a small example also, practical example बनाकर भी आप solve करके दिखा सकते हैं। और then we have what do you understand by working capital। so working capital की हमने कुछ theories की थी। working capital में हमने determine भी किया था how it is excess of current assets over the current liability is known as a working capital। so detail various sources from where the working capital needs can be financed। बैंक से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। अदर सोर्सेज हैं आपके से, जैसे आप डिपॉजिट्स ले सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स ले सकते हैं आप। जैसे कंपनीज क्या करती हैं, बुकिंग अमाउंट ले लेती हैं, कार वाले हैं जैसे बुकिंग अमाउंट ले लेते हैं, दे यूज इट एज ए वर्किंग कैपिटल ऑन विच इज ए फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? so they don't pay any interest on it, so that they can use for the working capital, so it is very important। then receivable management, लगभग मुझे लग रहा है आपको हर बार क्वेश्चन आ रहा है। receivable management आप थोड़ा सा पढ़कर जरूर जाएं कि आपके रिसीवेबल्स कैसे आएंगे, पैसे कैसे आएंगे, डेटर्स से आने हैं तो उसको मैनेज कैसे करना है, उनका टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आप कोई भी क्रेडिट पॉलिसी चेंज करते हैं तो हाउ इट विल बी, क्रेडिट स्टैंडर्ड्स आप कैसे चेंज करेंगे, क्रेडिट पीरियड ऑन प्रॉफिट कैसे चेंज हो जाएगा, तो हाउ इट विल अफेक्ट, है ना? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, इन्फ्लेशन चेंज हो जाएगा,
So what will be its effect on the receivable management? That you need to cover in it. You want to ask something? यस सर। सर Yes, yes. सर एग्जाम में हम लोगों को हर क्वेश्चन की डिफिनेशन समझानी है या एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बताने होंगे? पूछा It's a जाएगा। good question. It's a good question. It's a good question. It's really a good question. See, whenever you write the answer, say, I'm not saying because जब आप ये आंसर्स लिख रहे हैं, it's like a manager you are writing an answer, right? So when you write some answer, so there is a certain pattern that you follow in writing a theoretical answers, right? So first of all, you will write a general theory of it. General theory. I'm saying general theory. General theory means the outer environment of it. है ना? आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ही चाहे एक पैराग्राफ रट के चले जाइए, आप वो पहले लिख दीजिए. दैट इज जनरल थ्योरी, है ना? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही तो आ रहा है ना ये डिसीजन सारा. So then you will come to the particular. Particular means he's asking about the receivable management. Now you will talk about the receivable management, right? Then you will write about the particular. उसने कोई briefly पूछा है आपसे, वो that you will try. कोशिश करिए उसको डायग्राम में आप प्रेजेंट करें. अगर आपके 5 पॉइंट्स बन रहे हैं तो 5 पॉइंट्स को आप हेडिंग बना लीजिए और उसका एक डायग्राम बना दीजिए. Then you write. Then you write down the. You were asking whether you have to write a definition or not. Yes, you have to write the definition. Definition means that it is quoted by someone else. आपने उसकी किसी की कोट उठा ली. जब आप इंट्रोडक्टरी पार्ट उसका दे रहे हैं, देयर यू विल राइट द सर्टेन डेफिनेशंस, राइट? अब डेफिनेशंस आप जब दे रहे हैं तो हर चैप्टर में से लगभग आपको 2-2 डेफिनेशंस मिलेंगी. आप इसको एक लिस्ट बना लीजिए. प्रिपेयर अ वन लिस्ट इन अ वन पेज ओनली. यू कवर अप द होल बुक. आप उसको रट लीजिए और उसको जरूर लिखिए. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू राइट समवन एल्स डेफिनेशन, है ना, किसी और की, चाहे अकाउंटिंग एसोसिएशन की लिखें आप, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन की लिख रहे हैं मान लीजिए आप, या आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से लिख रहे हैं या किसी और के हिसाब से लिख रहे हैं, पर्टिकुलर ऑथर के हिसाब से लिख रहे हैं, तो यू काइंडली एक्सप्लेन इट ऑल्सो, है ना. एक्सप्लेन भी आपको अपनी इंटरप्रिटेशन भी देनी पड़ेगी उसमें. इट्स नॉट सिंपली आपने बस उसकी लिख दी, आपने उसकी डेफिनेशन, वैसे तो सफिशिएंट है, बट इट्स गुड टू इंटरप्रेट दैट वो उसमें कैसे, हाउ इट इज एक्सप्लेनिंग इन दैट, राइट? सो इट्स वेरी गुड. बट नाम गलत नहीं लिखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो इंडियन अकाउंटिंग की है तो इंडियन अकाउंटिंग, अमेरिकन अकाउंटिंग है तो अमेरिकन अकाउंटिंग. डोंट राइट एनीथिंग रॉन्ग, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, right? Then I hope I have explained the thing. Anything other thing you want to know? No sir. Okay, so one is explain cash management cycles and discuss the motives for cash holding. Okay, explain the Baumol's model for determining the optimal cash balance. Oh, that's nice. This is cash management. ये आपको क्वेश्चन मिलेगा. Baumol's model, ना? You want to Baumol's model? Yes, इसमें होगा. It's not working. Oh yeah. Here is the कैश मॉडल. कैश मतलब आपको कितना मेंटेन करना चाहिए कैश. कैन यू स्विच ऑफ योर माइक प्लीज? ये अपना माइक बंद कर लेंगे प्लीज. Baumol's model says that हमारा जितना भी कैश बैलेंस होता है, we try to maintain that. एवरेजली उसको एक मेंटेन करते हैं हम. एवरेज कैसे मेंटेन करते हैं? कहता है the firm is able to forecast its cash needs with certainty. हम हमेशा कैश मॉडल जो बनाते हैं वो कह रहा है कि हम एक सर्टेनिटी के साथ बनाते हैं. बट वो कह रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश इज known and it does not change over the time. आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है हर कैश की ये पता होती है और वो चेंज नहीं होती है. these are the basic assumptions पहले उसने ली हैं. देन वो कह रहा है कि there is a transaction cost is also constant. ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ली है उसने, that is cost constant. जो ट्रांजैक्शन किसी भी काम को करने की कॉस्ट जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, उसने assumption ली है. So then he decides कि आपको एवरेजली बैलेंस कितना रखना है. that is very important.
तो वो कह रहे हैं फोरकास्ट करते हैं हम विद सर्टेनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, देन होल्ड कैश कितना होल्ड करना है। अगर आपको कैश होल्ड करेंगे तो नेचुरली उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर मान लीजिए एक वन इज कि आप 10,000 रुपए एज ए करंट एसेट रख लें, वो भी अच्छी चीज है। बट अगर आप 10,000 की जगह 20,000 रख लेंगे तो 10,000 की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी थी, उसका कुछ और भी बना सकते थे आप। उसको आप बिजनेस में लगाते, से मान लीजिए उसी में आप रॉ मटेरियल में लगाते, रॉ मटेरियल के बाद फिनिश गुड बन के आता और उसमें सेल होती है एंड यू मस्ट हैव जनरेट सम प्रॉफिट्स। तो देयर इज ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना, उसके अगेंस्ट एक अपॉर्चुनिटी भी चल रही है। सो ही ऑलवेज से ही सेज दैट यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन इट। तो बैलेंस, दो चीजों की कॉस्ट होती है। ही इज सेइंग वन इज द होल्डिंग कॉस्ट एंड वन इज द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। So he has given a one formula that by this you can calculate the क्या लगा, मुझे नहीं पता। your cash models, right? One is आओ nature explain the nature of accounting function and discuss how accounting process act as a information system। ये हमने बहुत शुरू में किया था, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे चलता है, आपका क्लब कैसे होगा ये इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ, हाउ यू विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द हायर अथॉरिटी, हाउ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे विल प्रोवाइड टू द one is accounting and financial management। again you are getting a final accounts का एक क्वेश्चन आ रहा है, इसमें से कोई न्यू एंट्री तो नहीं दिख रही है। ओके, आई विल डू वन थिंग। ये वैसे प्रीवियस ईयर का पेपर है, एक ऐसा क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा जिसमें 2-3 एंट्रीज दे रखी हूँ, दैट यू कैन कवर एंड फाइनल अकाउंट्स में से मतलब क्वेश्चन आता है, राइट। वन इज दिस कंसेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से जो रिवाइज्ड है, उसको आप थोड़ा सा रीड कर लें, जरूर उसको जरूर आप रीड करके जाएं व्हेन यू आर रीडिंग दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग साइकिल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में से चैप्टर में से लगभग एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, तो यू गो थ्रू दी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एक्सप्लेन दी स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। जो अभी हम डिसीजंस कर रहे थे, कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस हमने लिए थे। वन वाज द नॉन डिस्काउंटिंग एंड नॉन डिस्काउंटिंग। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो भी आप लेते हैं उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, so that you can decide between the whether you are getting money positively, negatively, time कितना लग रहा है कितना नहीं लग रहा है, everything you cover up in that case। Then explain the various terms of payments accepted by the business transactions, explain credit policy variables, okay, discuss the quantitative impact of relaxing collection efforts and increase in cash discount on profits। This is all about the cash management, how you give a cash discount and how it will affect your cash management। It's all about it। तो जितने भी इफेक्ट्स आते हैं, एक बार आप कैश मैनेजमेंट का जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे, या फिर रिसीवेबल मैनेजमेंट्स का में ही शायद ये पार्ट कवर कर रखा हो, so you can cover up that from it। One is the holding inventory and discuss the objective of the inventory management। Again, this is a part of the working capital management। So explain the economic order quantity approach for inventory management। Inventory management means the stock management। Stock management में कितना स्टॉक होना चाहिए, कौन से स्टॉक को पहले निकालना है, which methods you will adopt। And economic order quantity means that आप एवरेजली क्वांटिटी कितनी आपको रखनी चाहिए, और एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्या होना चाहिए आपका। जब भी आप मान लीजिए एक मिनिमम लेवल आप मेंटेन कर लेते हैं,
एक एवरेज लेवल मेंटेन कर लेते हैं और एक मैक्सिमम लेवल मेंटेन कर लेते हैं। मैक्सिमम लेवल दैट मीन्स कि इसके बियॉन्ड आप स्टॉक नहीं रिटेन करेंगे। आप घर में भी एक बार ये फॉलो करते हैं। आप फॉलो क्या करते हैं कि मान लीजिए, बट देयर इज ए वन फॉर्मूला, यू कैन नोट डाउन इट फ्रॉम द बुक। They have given a specific, very simple formula for the economic order. One is the maximum level. आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि मान लीजिए इन अ मंथ यू रिक्वायर ओनली 5 kg ऑफ राइस, से मान लीजिए फॉर अ मंथ, राइट, जस्ट एग्जांपल। एंड वन इज द मिनिमम लेवल ऑल्सो। जब 1 kg तो आप रखते ही रखते हैं, मतलब उससे नीचे नहीं आप जाते। मैक्सिमम लेवल आपका 5 हो गया, मिनिमम लेवल आपका 1 kg हो गया। एंड वन इज द रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या होगा मेरा, मान लीजिए जब 2 kg रह जाता है, तो 2 kg जब रह जाता है तो मेरे को ये लगता है कि यार ये आने में अब नेक्स्ट मंथ आएगा ये, तो अभी अगर ऑर्डर दूंगा, या मतलब से राइस, वो पर्टिकुलर राइस है आपका और उसको टाइम लगता आने में, और उस दौरान में कंज्यूम भी हो जाएगा, तो आपका ये ना हो कि खत्म हो जाए। सो व्हाट यू डू, आप एक लेवल डिसाइड कर लेते हैं जहां पर आप कहते हैं कि यहाँ पर जैसे ही इस लेवल पे आएगा, मान लो 2 kg पे आएगा, सो आई विल रीऑर्डर। अब मैं दोबारा एक नया ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। बड़ी बड़ी फर्म्स को बहुत पहले ऑर्डर देना पड़ता है, वो कोई 1 किलो 2 किलो चीज लेते नहीं। सो दे डिसाइड भी दिस विल, इफ मिनिमम लेवल से थोड़ा वो ऊपर होगा, क्योंकि मैं मिनिमम लेवल पे नहीं जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मेंटेन माई मिनिमम लेवल, उससे नीचे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहता। सो रीऑर्डर लेवल एक इन बिटवीन एक लेवल आ जाता है, और उस पर आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। अब कितना ऑर्डर प्लेस करना है, दैट विल बी एक्सप्लेन्ड बाय द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि कितना ऑर्डर मेंटेन करने पे जब आपका आए, मान लीजिए जब आएगा तब आप मिनिमम पे पहुंच चुके होंगे, लगभग से 1 पे पहुंच चुके होंगे, तो लगभग आपका 4 और आना चाहिए। ये नहीं है 4 आएगा तभी तो 5 पे अटकेंगे। अगर आपने 5 मंगवा लिया तो 6 पे चले जाएंगे आप, है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप कितना ऑर्डर क्वांटिटी कर रहे हैं। देयर इज ए बेसिक फॉर्मूला, उसको जरूर नोट कर लीजिएगा, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि what is the relevance of this economic order quantity. One is what is the annual report of a company. एनुअल रिपोर्ट जो बैलेंस शीट एनालिसिस है आपका, वो पूरा आपका इसमें आप बता सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू प्रिपेयर एनुअल रिपोर्ट। इंफॉर्मेशन सिस्टम में आप डालते हैं इंफॉर्मेशन फॉर द इंटरनल और एक्सटर्नल, कैसे बनाएंगे, कैसे एनुअल रिपोर्ट को बनाएंगे, व्हाट इट विल बी कवर्ड। हमने एक रिपोर्टिंग वो भी पढ़ा था कि रिपोर्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें रिपोर्ट करनी चाहिए एनुअल, उसमें डिस्क्लोज क्या क्या करना चाहिए, दैट इज देयर, राइट। Okay, this is of June 2023. Again, asking about the concept. Show various items in the balance sheet. That means balance sheet analysis. Then the cash flow statement का analysis. And वो AS3 के according आप जरूर लिखें इसमें. One is the annual report. Again, same question is there. And then different type of investment decisions. आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस किस किस तरह के हो सकते हैं। डिस्कस द स्टेज इन कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस। तो कैपिटल बस्टिंग में प्रोसेस में कौन सी स्टेजेस हो सकती हैं। वन इज डिस्काउंटिंग मेथड, नॉन डिस्काउंटिंग मेथड, सारा आप इसमें डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, नेचुरली हम अभी डिस्कस करके हटे हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और देन ऑपरेटिंग साइकिल, कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग साइकिल आपका क्या है, अकॉर्डिंगली यू विल डिसाइड योर वर्किंग कैपिटल। से आपके रिसीवेबल्स कितनी देर में आ जाते हैं, या आपका सेलिंग कितनी देर में हो जाता है। ऑल प्रोपोर्शंस व्हेन यू चेक ऑन दैट वेरी बेसिस यू डिसाइड द वर्किंग कैपिटल। एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जो अभी हम कह रहे थे कि इन्फ्लेशन कैसे इफेक्ट कर सकता है, आपकी क्रेडिट पॉलिसी कैसे इफेक्ट कर सकती है। So that this part you must read. I think I'm expecting this question this time. Okay. Then what is the understand by the firm's credit policy, जो अभी हम बात कर रहे थे। लिबरल है आपकी या स्टिफ है क्रेडिट पॉलिसी, आप जल्दी पैसे मांग लेते हैं, आराम से पैसे आने देते हैं। एवरीथिंग इज देयर। आपने 30% क्रेडिट में सेल रखते हैं, या 50%, कई लोग तो 100% क्रेडिट सेल करने को रेडी रहते हैं। वो आपकी एग्रेसिव अप्रोच होती है। विच काइंड ऑफ अप्रोच यू आर अडॉप्टिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आर यू लिबरल और आर यू वेरी स्टिफ अबाउट दी। कई तो लिख देते हैं उधार बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना, देखा होगा आपने, शॉप्स पे भी देखा होगा। सो या फिर उधार अगली दुकान पे मिलेगा, लाइक समथिंग लाइक दैट, है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज योर क्रेडिट पॉलिसी अबाउट दी वेंडर्स।
So then, what are the reasons for holding inventory? Inventory management का chapter, उसमें आप explain what are the reasons you are holding your inventory. आपको लग रहा है prices जो हैं market में औरों के बढ़ने वाले हैं, then you hold your inventory. आप फिर sell करते हैं because आपका तो price already decided है, cost के base पे आपका price decided है. So there are certain things that you cover in it. I think sufficiently we have covered the question papers. Still, you find any question which is to which you believe that you are not understanding what you need to reply, you may ask me via mail any moment. Right? I will try to reply through the mail. Anything other than this you want to ask, so we will end up the class otherwise. Please write your roll numbers in the chat box. Yes, please. Anybody wants to ask something? No questions? There are two reasons that you don't have any question. या तो बहुत ही बुरा पढ़ा कभी है या बहुत प्रैक्टिकल क्लियर हो गया. बैलेंस शीट वगैरह देख सकते हैं, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह किसी भी कंपनी का आता है, उसका बैलेंस शीट वगैरह कैसे पढ़ना चाहिए, वो थोड़ा कभी स्टडी एनुअल एलोंग विद क्वार्टरली जो आता है, क्वार्टरली रिपोर्ट जो आता है. हाँ, यस. अगर आप बोलेंगे तो आई विल शेयर इट विद यू पीपल. मैं किसी एक ईमेल आईडी में आप मेरे को दे दीजिए. मैं किसी एक फाइनेंशियल किसी अच्छी फर्म की मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेंड कर दूंगा. ना वी कैन, वो तो नेट पे मिल जाएगा. मैंने तो वी कैन डिस्कस कि क्या क्या हमें चीज को देखना चाहिए कि सो दैट वी कैन एंश्योर कि यस दिस फर्म इज डूइंग गुड या दिस फर्म इज डूइंग बैड. आप इसमें screener.com पे जा सकते हैं. हाँ, आई एम रेफरिंग स्क्रीनर वन. Money, one is this what we call it, मनी कंट्रोल. moneycontrol.com. उसमें वो they explain each and everything, pros and cons every company का वो बताते हैं कि इसकी बैलेंस शीट में ये प्रॉब्लम्स हैं, इसके बाद वर्किंग कैपिटल नहीं बचा है, इसके फिक्स्ड एसेट्स बहुत बढ़ गए हैं. एवरी रीजन दे गिव आफ्टर स्टडिंग दी. वो बैलेंस शीट भी दिखाते हैं और नीचे एक्सप्लेनेशन भी देते हैं. यस. ओके. यस. Anything else? I think this is sufficient for today. Thank you so much. Take care, everyone. Do well in your exams. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay.